Hello students. Today the topic of my discussion is the molecular interpretation of Clausius-Mazzotti equation. Okay, this is very important topic and exam में ये पूछा भी जाता है ये question. So molecular interpretation of Clausius-Mazzotti equation. Okay, so what is, first of all, what is the Clausius-Mazzotti equation? ये है क्या पहले तो? This equation relates the dielectric constant of the material to the polarizability of its atom or its molecules. Okay, so basically it relate the dielectric constant जिसको आप K से डिनोट करते हो या एप्सिलॉन R से भी डिनोट करते हो, ठीक है, टू द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल्स, राइट. सो इन अदर वर्ड्स इसको आप क्लॉजियस-मज़ोट्टी इक्वेशन जो है ये क्या है, इट इज़ इन अदर वर्ड्स it gives us the relation between macroscopic and the microscopic property. Okay, between the microscopic property which is called the molecular polarizability and macroscopic property called dielectric constant. Okay, so ये Clausius-Mazzotti क्या है, it gives us the relation between the microscopic and the macroscopic. Okay, माइक्रोस्कोपिक वो होती है जो स्मॉल लेवल पे हम प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, एटम्स में, मॉलिकुलर लेवल पे, ठीक है. तो ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जो कि मॉलिकुलर पोलराइजेबिलिटी, और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जिसको हम बल्क में स्टडी करते हैं जो कि हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है. तो हमने ये दोनों का जो रिलेशन है वो डिराइव करना है यहाँ पे, ठीक है, क्लॉजियस-मज़ोट्टी इक्वेशन में. सो यू नो दैट द डायपोल मोमेंट विच इज़ इंड्यूस्ड, ठीक है, इन द मॉलिक्यूल टू द लोकल फील्ड और द पोलराइजिंग फील्ड, ओके, विच इज़ नोन एज EL, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट. मतलब जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट होगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग फील्ड, ठीक है. पोलराइजिंग फील्ड है, इसको हम L से डिनोट कर रहे हैं, EL से, ओके. एंड द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस PI, PI is directly proportional to the applied electric field. So we can write it as PI is equal to alpha EL, ओके, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं. सो L अल्फा कैन बी रिटन एज PI अपॉन EL, एंड अल्फा क्या है, अल्फा इट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, and it is known as molecular polarizability.
molecular polarizability. Okay, so if there are n molecules, okay, if n molecules are there per unit volume, okay, these are the number of molecules per unit volume, okay, and you know the dipole pi, induced dipole moment. So the total polarization can be written as P is equal to n multiplied by pi, right, where pi is the dipole moment, induced dipole moment, and n is the number of molecule per unit volume. So total जो dipole moment है per unit volume वो आ जाएगा आपके पास, ये कैपिटल P से डिनोट कर रहे हैं इसको, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो ये कैपिटल P है, दिस इज द पोलराइजेशन या टोटल डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, टोटल डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। ये डायपोल मोमेंट है और ये नंबर ऑफ मोलेक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है, ओके। सो यू कैन राइट इट एज n and pi is equal to, pi is alpha el, so you can write alpha el, okay. This is equation number 1, right? Now according to the Lorentz equation, ये इक्वेशन हम यहाँ डिराइव नहीं कर रहे, आपको डायरेक्टली बस लर्न करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस इक्वेशन, द polarizing field on a single molecule of the non-polar dielectric in macroscopic field E is given by the polarizing field on a single molecule of the non-polar dielectric in macroscopic field E is given by the equation. ये आपको इक्वेशन लर्न करनी है, ये क्या है, this is EL is equal to E plus P upon 3 epsilon naught, okay. ये लॉरेंस इक्वेशन है, ये होगी नंबर 2. Now substitute this value, substitute the value of 2 in one equation, so you will get P is equal to क्या था, n अल्फा EL था, ठीक है। तो n अल्फा EL की वैल्यू डाल देंगे, E प्लस P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, राइट। एंड ऑल्सो जो P है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 पुट कर देती हूँ। ऑल्सो जो P है ना, दिस इज K माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट E, जो K है यहाँ पे डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब ये कैसे आया, ये हमने पीछे जो मैंने वीडियो में बताया था ना डेरिवेशन, वहाँ से ही आएगा ये। जैसे जो E है दैट इज़ E नॉट माइनस EI, ठीक है। तो हमने E नॉट की वैल्यू पुट की थी, E नॉट एज इट इज़ रखा था, EI की वैल्यू पुट की थी। EI क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज़ P बाय एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज सिग्मा इज इक्वल टू P, राइट। सो यहाँ पे हमने एक रिलेशन निकाला था एंड में, अगर आपको याद हो तो, E इज इक्वल टू E नॉट अपॉन K, ओके। तो ये यहाँ पे आपने यूज़ करना है E की जगह पे। तो ये क्या बनेगा, इट विल बी E नॉट अपॉन K इज इक्वल टू E नॉट माइनस P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप सॉल्व कर लेना, एप्सिलॉन नॉट E नॉट माइनस P इज इक्वल टू E नॉट बाय K, ओके। सो ये आपके पास इक्वेशन आएगी।
epsilon naught E naught minus P is equal to, यहाँ पे K भी आएगा, this is equal to epsilon naught times E naught. ओके, सॉरी, आपको यहाँ पे E को ना बाद में पुट करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास ये वैल्यू आनी चाहिए K माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स E, राइट. सो यहाँ पे ये जो वैल्यू है P की, ठीक है, ये आपको मैंने बता दी है, ये आपने खुद से कर लेना एक बार, ठीक है. ये रिलेशन ये यूज़ होना है, ठीक है. थोड़ा सा तरीका यही है, आप करके अपने आप निकाल के देखना कि ये P जो है ये आना चाहिए. फिर ये जो P की वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे. विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ P in 3. Okay, then you will get K minus 1 epsilon naught E is equal to n alpha E plus, यहाँ पे भी P था ना, P बाय था, P अपॉन 3 epsilon naught था, तो P की वैल्यू यहाँ पे भी पुट करेंगे K minus 1 epsilon naught E अपॉन 3 epsilon naught. ओके, नाउ जस्ट आपको सॉल्व करते जाना है, बस चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है. यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा. K माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट E इज़ इक्वल टू n अल्फ़ा E कॉमन ले लिया, ठीक है. सो ये बनेगा 1 प्लस K माइनस 1 अपॉन 3, राइट. सो यहाँ पे आप E कैंसिल कर सकते हो, फिर आपके पास आएगा K माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू n अल्फ़ा, देन 3, आप एलसीएम लोगे 3 प्लस K माइनस 1 अपॉन 3, सो इट विल बी n अल्फ़ा K प्लस 2 हो जाएगा, K प्लस 2 बाई 3, राइट. एंड दिस विल बी इक्वल टू K माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट. Now n alpha can be written as K minus 1 epsilon naught, K minus 1 epsilon naught, okay, multiply by 3 epsilon naught. एंड अगर मैं अल्फ़ा लिखती हूँ सिर्फ तो n भी नीचे आ जाएगा और साथ में K प्लस 2, ठीक है. ये आपके पास रिलेशन आएगा जो कि, ठीक है, ये अल्फ़ा हो गया जो मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी था. और इसी में अब मैं आपको डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट बताती हूँ, जो कि K है ना, वो कुछ नहीं, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ही है. इसको हम एप्सिलॉन r से भी रिप्लेस कर सकते हैं. सो जो आपकी अल्फ़ा है ये 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन n, ओके, और K की जगह मैं एप्सिलॉन r माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r प्लस 2. ओके, ये जो आपका रिलेशन है जो अल्फ़ा और एप्सिलॉन r जो कि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेट करता है, दिस इक्वेशन इज नोन एज Closius-Massorty equation, and this is valid only for the non-polar cubic structures. Okay, so if you are having any doubts you can put it in the comment section. That's all for today. Thank you and have a nice day.